Hello students, we were looking at differentiation and today we'll be starting with the last part of differentiation, that is higher order derivatives. How to find the higher order derivatives and what do we mean by a higher order derivative. So let's see higher order derivative. Now suppose you are given a function fx. If you are having a function fx and you find the first derivative, that is you differentiate the function with respect to x, then you get the first order derivative, and after you have got the first derivative you differentiate the function one more time, then it is called as the second order derivative. So if you are having y is equal to f of x is a given function, you differentiate this function with respect to x, that will give us dy by dx is equal to f of x. Now this derivative is also written as y1. y1 is the first order derivative. Then you differentiate this function one more time with respect to x. So when you are differentiating here, we get this value is d times y1 divided by dx is equal to d by dx of dy by dx is equal to first order derivative is here f dash of x, here we call it as f double dash of x. और ये जो है इन नोटेशन दिस डेरिवेटिव ऑफ y1 is written as y2 is equal to, and here the derivative of dy by dx is written as d2y divided by dx square is equal to, this is f double dash of x. So this is the higher or सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसी तरह से अगर फंक्शन हमारा n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, देन यू कैन फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो इन सिमिलर प्रोसेस. सो कंटिन्यूअस अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जाओगे, देन इट इज कॉल्ड एज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ लेट्स सी few examples of higher order derivative. We are looking at exercise number 1.5. So in exercise 1.5 we'll be doing few sums, starting with the first group of question. The first group of question is find the second order derivative of the following function. Now here we are going to consider all the function as y is equal to, and we'll solve them to get the answer. So let's look at the first question there of group 1. Here we are going to call in the solution. So in the solution we are going to take y is equal to 2 into x raised to 5 minus 4x cube minus 2 divided by x square minus 9. अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना यहाँ पे इजी है बिकॉज वी हैव ऑल द फॉर्मूलाज. हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1. उसी तरह से हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन ऑल्सो. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन इज माइनस एन डिवाइड बाय एक्स रेज टू एन प्लस 1. सो विल अप्लाई द फॉर्मूलाज ओवर हियर एंड विल चेक आउट व्हाट हैपेंस देयर. सो पहले बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हियर 5x 2x रेज टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x रेज टू 5 का डेरिवेटिव है 5x रेज टू 4 माइनस 4 एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 दैट इज क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9 इज 0. सो हम नहीं लिख रहे. सो देयरफॉर वी गेट dy by dx is equal to this value is 10 into x raised to 4 minus 12x raised to 2 minus of minus is plus 4 divided by x cube. ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगेन विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि हमें d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर चाहिए. So again differentiating the function we get d2y divided by dx square is equal to this value is
10x⁴ का डेरिवेटिव आई डायरेक्टली राइट द वैल्यू एज 40x⁴. अब बहुत सारे सम्स हमारे हो गए हैं. दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज 20x⁴ प्लस ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया -3 डिवाइड बाय x⁴. नाउ विल राइट द टर्म properly. That will give us d2y divided by dx square is equal to ये हो जाएगा 40x³ minus 24x minus 12 divided by x⁴ और ये हो गया हमारा आंसर. I hope you have understood this method. मेथड तो वही है जो हमने प्रीवियसली फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था. दैट इज द सेम मेथड दैट वी आर अप्लाइंग ओवर हियर. सिर्फ हम एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन ग्रुप 1 अगेन आई एम टेकिंग द थर्ड सब क्वेश्चन. लेट मी राइट डाउन इन द सॉल्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. हम लिख लेते हैं y is equal to this is e⁴x into this is cos of 5x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x will give us the first order derivative that is dy by dx is equal to. यहाँ पे हम u into v अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा e⁴x multiply by derivative of cos of 5x plus cos of 5x into derivative of e⁴x. Now we'll apply the formula and get the answer for this one. So that value is ये हो जाएगा e⁴x वैसे ही रहेगा. cos of fx का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ 5x, राइट. सो दैट इज माइनस साइन ऑफ fx मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस यहाँ पे cos ऑफ 5x वैसे रहेगा. e⁴fx का डेरिवेटिव हो जाता है e⁴fx इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ fx. सो अभी ये दो टर्म का हमें डेरिवेटिव चाहिए. लेट्स फाइंड आउट डेरिवेटिव. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा e⁴x माइनस साइन आगे लिख रहे हैं. दिस इज साइन ऑफ 5x मल्टीप्लाई बाय 5. डेरिवेटिव ऑफ 5x हमें मिला 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास है cos ऑफ 5x एज इट इज e⁴x एज इट इज. 4x का डेरिवेटिव हो गया 4. Now we'll multiply the term or else we'll just take the constant term or you can say the scalar term first. तो ये यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं. We can take the term here e⁴x कॉमन. अब ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव है दैट इज माइनस ऑफ 5 टाइम्स दिस इज साइन ऑफ 5x प्लस दिस इज 4 टाइम्स कॉस ऑफ 5x. अब नेगेटिव टर्म को पीछे लिखते हैं तो हमें मिल जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू दिस इज e⁴x मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 4 टाइम्स cos ऑफ 5x माइनस 5 टाइम्स साइन ऑफ 5x. अब ये हमारा dy बाई dx है. वी स्टिल नीड d2y. तो अब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एज वी डिफरेंशिएट द फंक्शन. अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है दिस इज d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू. वापस ये स्टेप में हम u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया e⁴x एज इट इज मल्टीप्लाई बाय हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू कॉस ऑफ 5x. सो 4 विल रिमेन एज इट इज. कॉस ऑफ 5x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ 5x. 5x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 5. नाउ आई एम नॉट राइटिंग दिस स्टेप, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस स्टेप. माइनस यहाँ पे ये 5 वैसे ही रहेगा. साइन ऑफ 5x का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस ऑफ 5x. 5x वापस फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 प्लस ये हो गया हमारा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस अब v वैसे ही रहेगा जो है 4 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस दिस इज 5 इंटू साइन ऑफ 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁴x. e⁴x का डेरिवेटिव हो जाता है e⁴x. 4x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 4.
अब हम क्या करेंगे, वॉट एवर टर्म कैन बी टेकन कॉमन विल जस्ट टेक द टर्म कॉमन। अब दोनों टर्म में अगर देखें, यहाँ पे e रेज टू 4x है, यहाँ पे भी e रेज टू 4x है, सो विल टेक e रेज टू 4x कॉमन। बचा क्या हमारे पास, लेट्स राइट डाउन द टर्म्स। सो बचे हुए टर्म्स हमारे पास है यहाँ पे 5 फोरजा हो जाता है -20 इंटू दिस इज साइन ऑफ 5x माइनस 5 फाइजा हो जाता है 25 इंटू कॉस ऑफ 5x। यहाँ से ये यहाँ हो गया प्लस, ये 4 के साथ ये पूरा टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलने वाला है दिस वैल्यू इज 16 टाइम्स कॉस ऑफ 5x and that value will give us -20 times sin of 5x। अब जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेट्स डू दैट। सो हियर वी गेट d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू 4x वैसे ही रहेगा, माइनस ऑफ 20 साइन x, यहाँ पे है माइनस 20 साइन x, सो दैट विल गिव अस -40 इंटू साइन ऑफ 5x। यहाँ पे है -25 cos 5x एंड प्लस 16 टाइम्स cos ऑफ 5x, सो दैट विल गिव अस -9 टाइम्स cos ऑफ 5x। अब ये दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, लेट्स टेक द माइनस साइन कॉमन, दैट विल गिव अस d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास है e रेज टू 4x इंटू द ब्रैकेट टर्म रिमेनिंग इज 40 टाइम्स साइन ऑफ 5x प्लस यहाँ पे बचा है 9 टाइम्स कॉस ऑफ 5x, और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वी आर जस्ट अप्लाइंग u इंटू वी 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 बार हमने u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई किया है टू गेट द फाइनल आंसर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नाउ फ्रॉम ग्रुप 1 अगेन। सो हियर वी आर टेकिंग, लेट मी राइट डाउन इन द सोल्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू, दिस इज x रेज टू x। अब x रेज टू x मतलब हो गया फंक्शन रेज टू फंक्शन, सो वेन एवर देर इज अ फंक्शन रेज टू फंक्शन हम करते हैं लॉगरिथम, वी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। As we take log on both sides, हमें मिल जाता है this side we get log of y is equal to x times log of x। काफी सारे सम्स किया, अभी आपको ये मालूम है। Now the term is simple, we'll differentiate the term with respect to x, so that will give us log of y का डेरिवेटिव हो जाता है 1 upon y, y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी, सो दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x हो जाता है 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, so that is going to give us 1 upon y into this is dy by dx is equal to 1 plus log of x। लेकिन हमें dy by dx अकेला चाहिए तो we can write dy by dx is equal to this is y multiply by 1 plus log of x। Now for this term we are not going to re-substitute the value of y, हम y का वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर चाहिए, सो विल डिफरेंशिएट द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम u इंटू वी वापस अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाता है y मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x वैसे ही रहेगा, और हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ y जो होता है dy बाई dx। नाउ लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, एक टर्म का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस, so I'll write on this side, so that will give us d2y divided by dx square is equal to, यहाँ पे हमारे पास है y मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास है dy बाय
dx. So let's write down the term. हमें मिलता है d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस यहाँ पे है 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू दिस इज dy बाई dx. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे y भी दिख रहा है. हियर देर इज अ y टर्म एंड वी आर हैविंग dy बाई dx ऑल्सो ओवर हियर. ये दोनों टर्म हमें नहीं चाहिए. हम उन दोनों का भी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास है y का वैल्यू और हमारे पास है dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे. सो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, फिलहाल इसको y अपॉन x ही रखते हैं, प्लस हियर वी आर हैविंग 1 प्लस दिस इज लॉग ऑफ x. dy बाई dx का वैल्यू देखें तो यहाँ पे है y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x. अब दोनों जगह से हम y कॉमन ले सकते हैं या फिर फिलहाल y को वैसे ही रखते हैं. दिस इज y डिवाइड बाय x प्लस दिस इज y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x होल स्क्वायर. अब y का वैल्यू हम रिसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू y वैल्यू इज x रेज टू x अपॉन x प्लस ये हो गया x रेज टू x इंटू दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ x होल स्क्वायर. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ये स्टेप में ही डायरेक्ट y का वैल्यू भी रिसब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बट आई हैव टेकन मोर स्टेप्स. नाउ हियर ये वाले टर्म में हम लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स अप्लाई दैट. दैट विल गिव अस d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया x रेज टू x माइनस 1 प्लस ये हो गया x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x होल square, and that is our answer. I hope you have understood this. Let's take another question. Now we are going to group 2 questions. So group 2 I am solving the first question. बाकी सभी sums इसी तरह से करने हैं. So there are few sums for practicing also for you all. So let me write down the term what is given to us. So let's see in the solution what all terms are given to us. अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. और यहाँ पे सभी फंक्शंस जो दिए हैं वो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं एंड वी वांट टू फाइंड आउट d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर. अब हमारे पास y का वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू दिया है a मल्टीप्लाई बाय थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा. अब दोनों फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो एज वी डिफरेंशिएट हमें मिलता है dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a विल रिमेन एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव. कॉस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ थीटा. एंड हियर इफ यू फाइंड द डेरिवेटिव हमें मिलता है dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी कॉस ऑफ थीटा. सो हियर लेट्स राइट डाउन द टर्म. हमें मिलता है dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ थीटा and we get dx divided by d theta is equal to a multiplied by 1 minus cos of theta. अब पैरामेट्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. हमें मिलता है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा. लेट्स पुट ऑन द वैल्यूज ओवर हियर. तो हमें मिल जाता है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा का वैल्यू मिला है a इंटू साइन ऑफ थीटा और dx बाय डी थीटा का वैल्यू मिला है a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. अब a तो कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा इज सेम एज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. अब डिनोमिनेटर में अगर थीटा बाय 2 है तो न्यूमरेटर में भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2. कैंसिलेशन करने के बाद हमें मिला dy बाय dx इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाय 2. यहाँ तक समझ में आया? दिस वी नो. यहाँ तक हमने
बहुत सारे सम्स में किया हुआ है व्हेन वी हैव स्टडीड द पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब हमें चाहिए है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट मी राइट डाउन व्हाट इज dy बाई डी एक्स। हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। अब यहाँ पे जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, राइट हैंड साइड में फंक्शन हमारा थीटा में है, तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। यू रिमेम्बर द चेन रूल, यू नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू कैन से dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। अगर u के जगह पे थीटा है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। तो ये हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले जो फंक्शन हमारा है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज थीटा बाई कॉट ऑफ थीटा बाई 2। अब थीटा हमारा फंक्शन है x में, तो हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। वी आर जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे ये जो y था उसका वैल्यू हमने डाल दिया है। अब आफ्टर दिस इज डन, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2। तो हमें मिलता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। कॉट का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स को हमने कुछ नहीं किया है। अब हमें चाहिए है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ये टर्म का वैल्यू हमें चाहिए है डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसका वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वी नो व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। तो अगर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ पे हमें मिल जाता है। सो सिंस वी नो दैट डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू a into 1 minus cos of theta, we can say that d theta divided by dx is equal to 1 upon dx by d theta। हमारा इनवर्स फंक्शन वाला रूल है तो हम अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू हम डाल देते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। सो वे फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट डू वी गेट, सो फ्रॉम 1 अब हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/2 को आगे लिख रहे हैं, सो दिस इज माइनस 1/2 इंटू दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है जो है 1/a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। विल जस्ट टेक दिस a टू द फ्रंट, तो ये हो गया माइनस 1/2a मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। सो जस्ट अप्लाइंग द रूल हियर। अब वापस से इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन दिस 2 मल्टीप्लाइड विद दिस 2 विल गिव अस 4a एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाता है कोसेक। सो अगेन देयर इज अ कोसेक स्क्वायर ओवर हियर एंड अ कोसेक स्क्वायर ओवर हियर। इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद तो हमें मिल जाता है दिस वैल्यू इज कोसेक रेज टू 4 इंटू दिस इज ऑफ थीटा बाय 2। तो ये हो गया हमारा d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस सम वाज लिटिल डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना था, सबसे पहले तो हमने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वी गॉट dy बाय डी थीटा। सो हियर वी हैव गॉट dy बाय डी थीटा। फिर हमने x को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिला dx बाय डी थीटा। हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। सो हियर वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय
डी थीटा। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हमें मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। लेकिन हमें और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सो वी हैव डिफ्रेंशिएटेड इट वन मोर टाइम। सो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द चेन रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स। अब यहाँ पे u के जगह पे थीटा है, तो हमने सिर्फ u को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे थीटा से। So that will give us d2y divided by dx square is equal to derivative of this cot of theta by 2 with respect to theta and derivative of theta with respect to x. अब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 1/2। दिस डी थीटा बाई डी एक्स हमने फिलहाल तो वैसे ही रखा, वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू दैट टर्म। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है, तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने इनवर्स फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें मिलता है डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा एंड दैट इज 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो हमें डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है, हमने इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें मिला d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 कोस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सो दैट फॉर्मूला इज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। We have taken this 2 and this 2 together, so that has given us minus 1 upon 4a into ये 1 upon sin square है, इसको हमने cosec square डाल दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल जाता है cosec raised to 4 theta by 2 and that has given us the answer. I hope you have understood how to solve the parametric functions. पैरामेट्रिक फंक्शन में ये एक स्टेप है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, दैट इज फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा यू आर अप्लाइंग द चेन रूल। सो इफ यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स इट इज मच इजी फॉर यू टू सॉल्व द एग्जाम्पल। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप 2। Now here we are taking group 2 sub question number 3. Let's see what all terms are given to us. So in the solution we are given the value of x is equal to, we are given sine of theta and we are given y is equal to sine cube theta. अब यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन with respect to theta. So that is going to give us dx by d theta is equal to derivative of sin theta हो जाता है cos of theta और हमें मिल जाता है dy by d theta is equal to sin cube है, तो क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू दिस इज साइन स्क्वायर थीटा और साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस ऑफ थीटा। सो ये हो गया हमारा dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा। अब पैरामेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी नो दिस इज dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा। Now we'll put out the values of dy by d theta and dx by d theta, तो हमें मिल जाता है dy by dx is equal to dy by d theta हमारे पास है 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा एंड वी हैव dx by d theta है cos of theta. So that will give us the value dy by dx is equal to, कॉस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब हमें चाहिए है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो प्रीवियस सम में जैसे हमने मेथड अप्लाई किया था सेम मेथड इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाता है अगेन विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x।
So that is going to give us d2y divided by dx square is equal to, ये हो जाएगा d by d theta of 3 into sin square theta. थीटा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है d theta divided by dx. Now we'll find out what is the derivative of 3 sin square x. तो हमें मिल जाता है d2y divided by dx square is equal to, ये हो जाएगा 3 sin square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into sin of theta. sin theta का डेरिवेटिव हो जाता है cos of theta multiply by d theta divided by dx. अब प्रीवियस के जैसे ही हमारे पास dx बाई डी टीटा यहाँ पे है, ये वाले वैल्यू से हम डी टीटा बाई dx का वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स फंक्शन फॉर्मूला. सो सिंस वी नो दैट dx डिवाइड बाई डी टीटा is equal to cos of theta, we can say that d theta divided by dx is equal to 1 upon dx by d theta. So that value is 1 upon cos of theta. अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं हमारे d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर में. सो दैट विल गिव अस d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज 6 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा. कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे, हमें मिलता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइन ऑफ थीटा. अब ये वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए. वी वांट द वैल्यू ऑफ d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. So when pi by theta is taking the value pi by 2, let us see what happens. So when थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2. अब साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हमें मालूम है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हो जाता है 1. सो दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दैट गिव्स अस d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, द वैल्यू इज इक्वल टू 6. अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व एंड दैट इज आवर आंसर. अब ये वाले सम को और एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेम सम. नाउ हियर दिस इज अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. लेट अस सी व्हाट इज दिस मेथड. अब हमारे पास x का वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ थीटा, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, राइट. नाउ इफ यू लुक एट दीज टू पर्टिकुलर टर्म्स, यहाँ पे x का वैल्यू साइन थीटा है, y का वैल्यू साइन क्यूब थीटा है, तो y के जगह पे हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब ये टर्म काफी सिंपल हो गया है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एज वी डिफरेंशिएट हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. एक टाइम डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वापस इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x. अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, हमें x का वैल्यू की जरूरत है. तो हम देखते हैं x का वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ थीटा, तो हो जाता है साइन ऑफ पाई बाय 2 एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1. तो हमें मिलता है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सॉरी व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, हमें मिलता है x इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर d2y divided by dx square at x is equal to 1, the value is equal to 6 into 1 and that will give us the value 6. तो ये हो गया हमारा आंसर. So you can apply any one of the method, this one or this one. अब यहाँ पे ये मेथड यूज हो रहा था क्योंकि हम y को x में लिख सकते थे. अगर हम ये लिख सकते हैं then we can apply this method, otherwise you will have to use the first method to solve the sums. So I hope you have understood both the methods. Now we'll stop over here for the day, students. Whatever examples are remaining of group number 1 and group number 2 are your assignment. Try to complete them. We'll stop here.
Have a nice day and thank you.